हेलो एवरीवन, वेलकम टू ARV सक्सेस जंक्शन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स कन्वर्जेंट थिंकिंग? ऑप्शन ए, जनरेटिंग मल्टीपल यूनिक सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम। ऑप्शन बी, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय कंबाइनिंग डिफरेंट आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव्स। ऑप्शन सी, narrowing down multiple options to find a single best solution. Option D, brainstorming ideas without evaluating their feasibility. Right answer is option C, narrowing down multiple options to find a single best solution. Convergent thinking is best described as the process of narrowing down multiple options to find a single best solution. कन्वर्जेंट थिंकिंग एक ऐसी थिंकिंग होती है जिसमें हम मल्टीपल ऑप्शन को नैरो डाउन करके एक सिंगल बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। और डाइवर्जेंट थिंकिंग ऐसी थिंकिंग होती है जिसमें हमें मल्टीपल सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग वर्सेस डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग इज अ टाइप ऑफ थिंकिंग दैट इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द मोस्ट इफेक्टिव आंसर टू अ प्रॉब्लम। Divergent thinking is a type of thinking that involves generating creative ideas to explore many possible solutions. In convergent thinking, there is only one right solution. In divergent thinking, there can be multiple solutions. कन्वर्जेंट थिंकिंग में हम डिडक्टिव रीजनिंग का यूज करते हैं और डाइवर्जेंट थिंकिंग में हम इंडक्टिव रीजनिंग का यूज करते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग एक्यूरेट, स्पीडी एंड लॉजिकल होती है और डाइवर्जेंट थिंकिंग स्पॉन्टेनियस, फ्री फ्लोइंग एंड नॉन लीनियर होती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग टेक्स लेस टाइम, डाइवर्जेंट थिंकिंग टेक्स मोर टाइम। डाइवर्जेंट थिंकिंग is a cognitive process used to generate a variety of ideas or solution by exploring multiple possibilities and perspectives. डाइवर्जेंट थिंकिंग एक ऐसी थिंकिंग होती है जिसमें हमें मल्टीपल पॉसिबिलिटी और मल्टीपल सॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस यूज्ड टू नैरो डाउन मल्टीपल आइडियाज और सॉल्यूशंस टू आइडेंटिफाई द बेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव वन। कन्वर्जेंट थिंकिंग एक ऐसी थिंकिंग होती है जिसमें हम मल्टीपल आइडियाज को नैरो डाउन करके एक सिंगल बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स डाइवर्जेंट थिंकिंग? ऑप्शन ए, फोकसिंग ऑन अ सिंगल करेक्ट आंसर टू अ प्रॉब्लम। ऑप्शन बी, जनरेटिंग मल्टीपल यूनिक सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। ऑप्शन सी, यूजिंग अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। Option D, narrowing down options to find the best solution. Right answer is option B, generating multiple unique solutions to a problem. Divergent thinking is best described as the process of generating multiple unique solutions to a problem. Question number 3, which of the following is not an objective of teaching? Option A, imparting knowledge and skills. Option B, encouraging critical thinking and creativity. Option C, facilitating holistic development. Option D, ensuring strict adherence to a single viewpoint. Right answer is option D, ensuring strict adherence to a single viewpoint. टीचिंग के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फोस्टर एन एनवायरनमेंट वेयर नॉलेज एंड स्किल्स आर इम्पार्टेड, critical thinking and creativity are encouraged, and holistic development is facilitated. Question number 4, which of the following is a primary objective of teaching? Option A, to ensure students memorize facts without understanding. Option B, to encourage critical thinking and problem solving skills. Option C, to enforce uniformity in student opinions. Option D, to limit students' exposure to diverse viewpoints. Right answer is option B, to encourage critical thinking and problem solving skills. One of the primary objectives of teaching is to encourage critical thinking and problem solving skills. Question number 5,
In the context of learning, what does a plateau refer to? Option A, a period during which no noticeable progress is made despite continuous efforts. Option B, a sudden increase in learning performance. Option C, the initial phase of rapid learning. Option D, the final stage of mastery in a skill. Right answer is option A, a period during which no noticeable progress is made despite continuous efforts. In the context of learning, a plateau refers to a period during which no noticeable progress is made despite continuous efforts. लर्निंग के कंटेक्स्ट में प्लेट्यू एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें किसी तरह की कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही होती है। यहाँ पर हमने एक लर्निंग कर्व का डायग्राम लिया है जिसके एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ ट्रायल्स और अटेम्प्ट्स एट लर्निंग है, वाई एक्सिस में परफॉर्मेंस मेजर लिया गया है। लर्निंग कर्व के स्टार्टिंग में स्लो बिगिनिंग होती है, उसके बाद स्टीप एक्सेलरेशन की स्टेज आती है और सबसे लास्ट में प्लेट्यू स्टेज आती है। लर्निंग कर्व में प्लेट्यू स्टेज एक स्टेशनरी स्टेज होती है जिसमें लर्निंग में किसी तरह की कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही होती है। प्लेट्यू स्टेज में लर्निंग में किसी तरह की कोई इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड? ऑप्शन ए लेक्चर, ऑप्शन बी डेमोन्स्ट्रेशन, ऑप्शन सी ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ऑप्शन डी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, ड्रिल एंड प्रैक्टिस टीचर सेंटर्ड मेथड के एग्जाम्पल हैं और प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग लर्नर सेंटर्ड मेथड का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्लिप्ड क्लासरूम? ऑप्शन ए स्टूडेंट्स कंप्लीट असाइनमेंट्स इंडिपेंडेंटली एट होम, ऑप्शन बी टीचर्स डिलीवर लेक्चर्स एंड कंटेंट ड्यूरिंग क्लास टाइम, ऑप्शन सी students teach the lesson to each other, option D students review recorded lectured at home and engage in activities in class. Right answer is option D, students review recorded lectures at home and engage in activities in class. The primary characteristics of a flipped classroom is that students review recorded lectures or instruction materials at home and then engage in interactive activities, discussions and exercise during class time. फ्लिप्ड क्लासरूम ट्रेडिशनल क्लासरूम से उल्टा होता है। ट्रेडिशनल क्लासरूम में क्या होता था, एक टीचर क्लास में लेक्चर देता था, कंटेंट समझाता था और स्टूडेंट्स घर में जाकर एक्सरसाइज और होमवर्क करते थे। लेकिन फ्लिप्ड क्लासरूम में इससे उल्टा होता है। फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है कि स्टूडेंट्स को पहले से ही एक रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड कर दी जाती है। स्टूडेंट्स उस वीडियो से कंटेंट को पढ़ते हैं, जो इंस्ट्रक्शन मटेरियल उन्हें प्रोवाइड किया जाता है उस मटेरियल को पढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं और क्लास में आकर एक्सरसाइज करते हैं, डिस्कशन करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डिड इवान पैब्लो फेमसली डेमोन्स्ट्रेट थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट्स विद डॉग्स? ऑप्शन ए ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑप्शन बी क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑप्शन सी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ऑप्शन डी कॉग्निटिव लर्निंग। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्लासिकल कंडीशनिंग। Ivan Pavlov famously demonstrated classical conditioning through his experiments with dogs. Question number 9. Who is credited with developing the theory of operant conditioning? Option A. Ivan Pavlov, option B. B.F. Skinner, option C. Albert Bandura, option D. John V. Watson. Right answer is option B, B.F. Skinner. Operant conditioning is a theory developed by B.F. Skinner. Question number 10. Who proposed the theory of multiple intelligence? Option A. Howard Gardner, option B. Jean Piaget, option C. Lev Vygotsky, option D. Erik Erikson. Right answer is option A, Howard Gardner. The theory of multiple intelligence was proposed by
हावर्ड गार्डनर। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।